Om Shanti and welcome everybody to today's session. तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं इस सेशन के अंदर, that is emerging stronger than challenges. This particular topic is suitable to mostly serious type of audience, serious in the sense mature audience. Recording is started. Thank you. So the topic today that we are taking, emerging stronger than challenges, this particular topic is suitable to mature audiences, those who are either in the changing phase of their life, like university students who have to face a lot of challenges in the terms of pressure of building a good career, and some of them have to stay in hostels, some of them have to cope up with the environment which they were not used to in their school lives. Also to professionals and people who are into work areas which are difficult. So this topic is suitable for those type of audiences. So considering that we are dealing with those audiences, I will discuss a few things with all of you, and I'm sharing this screen so that we can go through some slides together. And emerging stronger than challenges, as we have already taken one topic, which is problem solving in a peaceful way, which is similar to this. Over there, we had defined what a problem is. Similarly, over here also, we can define what a challenge is. So we can use the same formula for challenge also, that challenge is equal to situation divided by coping ability. Every situation is not a challenge. It becomes a challenge only when we do not have the coping ability for it. Then it becomes a challenge. So it is our perception of the situation. If I look at the situation as an opportunity, even though how difficult the opportunity or the situation is, I will not take it as a challenge. It only becomes a challenge when I look. It only becomes a challenge, any situation only becomes a challenge if my perception towards that particular situation is that I cannot solve it. So a quick activity that we can ask everybody to do, you can show them the slide and ask them to try to read this, and you yourself can try and read this right now. And once you're able to read, just raise your hand or let us know that you have read it. So have you read it? Okay. So give them some time to read, and then what is the message of the slide is in the slide itself, right? I hope you've read it. All of you have read it. Okay. So the reason to show this slide in the very beginning is to tell them that our mind is an expert in completing incomplete things. A situation becomes a challenge because it is incomplete, because the answer to the situation is not in the situation, that you have to add. And our mind is an expert in completing incomplete information. And the way it completes depends on the programming that has already been done in the mind. So our mind has a certain programming.
For example, some things we consider impossible from the very beginning. So whenever similar situation comes with some blanks over here, like I interpreted the word as per my understanding, which is already there. Right? So I read the incomplete word, or I read the jumbled word in my own way, depending on the kind of knowledge I have. Similarly, I will read a situation depending on the knowledge I have. And if I have a wrong perception about myself, if I have a wrong perception about life, any simple person who is just different to me will become a challenge for me. Any simple situation for which I do not have an answer will become a challenge for me. So there is a need for me to change my perception. So you can show them some tricky images like these. So like this seems to be a motorbike or a cycle, but it's actually a grasshopper sitting on a fern. This reads like good, but if you read the white spaces, it becomes evil. This you can read as teach, but if you see the reflection, it is learn. This reads like me, but if you see the gaps in between, it reads you. So the situation appears to be how I look at it. Am I looking what's outside, or am I looking at what's inside? Am I looking at what's on the top layer, or am I reflecting and trying to see what's behind the scene? So if I want to become stronger than challenge, then I have to see beyond the situation. Leave aside what my mind has been trained at and try to see what are the other possibilities in the situation. So whenever you are caught up in a situation like this, which seems to be a challenge to you, ask yourself, do you have any problem? Right? If the answer is no, then why worry? You don't have any problems, then why do you worry? Many people, even if they don't have any problems, still just by looking at the problems other people have, commenting on the situation, and just trying to poke their nose in other people's business, they will keep on worrying. वहां पे ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, वो इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया. कुछ उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी उनको चिंता करनी है. दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है. दुनिया में जो हो रहा है उसके जज हम क्यों बने, उसके जज हम क्यों बने? अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो अच्छी बात है. अदरवाइज केवल एक उस चीज का हाइप क्रिएट करना, केवल उस चीज को बार बार कहते रहना, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं चिंता क्यों करूं? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो फिर अपने आप से पूछना है, डू यू हैव अ सोल्यूशन? अगर हमारे पास प्रॉब्लम है और हमारे पास सोल्यूशन भी है, फिर चिंता क्यों करनी? अगर हमारे पास प्रॉब्लम है लेकिन हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, तो हमें अपने आप से पूछना है कि अब ये समय मेरे लिए क्या कहता है. क्या ये समय प्रॉब्लम पे से डर करके चिंता करने का है, कोई फायदा है, या ये टाइम है सोल्यूशन ढूंढने का? सो इन एनी वे, व्हाई डू वी हैव टू वरी? चैलेंज लाइफ में हो या ना हो, चिंता का कोई स्कोप नहीं है, डर का कोई स्कोप नहीं है, स्ट्रेस का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये समय स्ट्रेस क्रिएट करने का नहीं है, सोल्यूशन क्रिएट करने का है. अगर सोल्यूशन है तो यूज करने का समय है, और अगर सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन क्रिएट करने का समय है. सो कैसे करें? इसके लिए जैसे हमने कहा, लुक एट इवेंट्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो लर्न फ्रॉम इवेंट्स. लाइफ हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज देती है, भले ही हम उस चीज में एक्सपर्ट ना हो, लेकिन बनेंगे कैसे?
बनेंगे भी तो तभी जब हम उसके ऊपर वर्क करें, एक्सपेरिमेंट करें। तो लाइफ हमें अपॉर्चुनिटी देती है एक अपॉर्चुनिटी देती है ताकि हम अपने फियर को ओवरकम करें, एंड वी ट्राई एंड एक्सप्लोर थिंग्स एंड एरियाज जो हमने अभी तक नहीं किए थे। जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, सो दैट विल नॉट इंक्रीज आवर कैपेसिटी, वी विल बी वेयर वी आर, जहां हम थे वहीं पर हम रहेंगे। इसलिए एक बार हमें अपने फियर के आगे बढ़ना पड़ता है, तभी हमें उसके भी आगे की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रास्ते हैं, वो हमको नजर आते हैं। सो वंस वी बिकम फियरलेस, लाइफ बिकम्स लिमिटलेस। क्योंकि लिमिटेशंस क्या है हमारी, जिन जिन बातों का मुझे डर लगता है वही मेरे लिए लिमिटेशंस बन जाती हैं। एंड ऑल्सो नथिंग ever goes away until it teaches us what we need to do. हर चीज जो लाइफ में आई है, इट हैज कम विद अ पर्पस। वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, हर सिचुएशन कुछ सिखाने के लिए आई है। और जब तक हम उस चीज को सीखेंगे नहीं, तब तक वो चीज जाएगी नहीं। जैसे बाबा भी हमें कहते हैं कि एक बार अगर आपने क्वेश्चन पेपर को क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, आंसर कर लिया, दोबारा वो क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। लेकिन जब तक हम उस क्वेश्चन पेपर से कतरा रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, हम केवल उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वो वही का वही है और हम भी वही के वही हैं। बच्चा अगर एक बार 9th का 10th का एग्जाम क्रॉस कर लेगा तो दोबारा वो 9th का 10th का पेपर कभी नहीं देना पड़ेगा, उसको एक बार पार करना पड़ेगा। और नहीं तो जब भी एग्जाम आए, बच्चा बहाना बना दे मेरे पेट में दर्द है और एग्जाम मिस कर दे, तो बिना उस एग्जाम को क्रॉस किए, बिना वो सीखे, वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो 9th का 9th में ही रह जाएगा। इसलिए बार बार अवॉइड करने से भी फायदा नहीं है। बार बार फेल होता रहेगा, बार बार अवॉइड करता रहेगा, तो 9th क्लास में ही बना रहेगा। एक बार तो लाइफ में वो 9th का पेपर पार करके 10th में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो भी लाइफ में मेरे सामने इवेंट आया है, प्रॉब्लम आई है, उसको मुझे फेस करना है। तो अपने फियर को ओवरकम करना है। जो सीख वो चीज मुझे देने के लिए आई है, उस चीज को सीख करके आगे बढ़ना है। एंड द ग्रेटर द ऑब्स्टेकल, द मोर ग्लोरी इन ओवरकमिंग इट। छोटी मोटी सिचुएशंस को पार करते हैं तो छोटी मोटी सीख मिलती है। जो बाबा कहते हैं कि नाम वाला होता है, वो नाम भी थोड़ा थोड़ा सा किया तो थोड़ा नाम वाला होगा। अब इस समय क्योंकि हमारा पुरुषार्थ बेहद का है, तो बाबा कहते हैं पद भी बेहद की है। सेवा बेहद का है तो पद भी बेहद का है। और अगर सेवा थोड़ी सी करेंगे तो पद भी थोड़ा मिलेगा, पढ़ाई थोड़ा सा करेंगे तो पद भी थोड़ा छोटा मिलेगा। तो जितना बड़ा ऑब्स्टेकल, उसको ओवरकम करने के बाद में उतना ही हमें ग्लोरी मिलती है। इसलिए डू नॉट बी अफ्रेड बाय द ऑब्स्टेकल। चैलेंजेस से थक के नहीं बैठना, क्योंकि उस चैलेंज को पार करने के बाद में उतना ही बड़ा जंप मुझे मिलने वाला है। अगर उस ऑब्स्टेकल को मैंने स्टेपिंग स्टोन बनाया, तो डेफिनेटली बड़ा स्टेपिंग स्टोन, बड़ा ऑब्स्टेकल देख करके रुकना नहीं है, लेकिन वो ऑब्स्टेकल नहीं, वो मेरा स्टेपिंग स्टोन है। तो बड़ा स्टेपिंग स्टोन मतलब मैं एक ही कदम में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगी, एक ही बार में। ऑल्सो नो मड नो लोटस। कीचड़ में ही कमल उगता है। इसलिए कमल को लेने के लिए कीचड़ को नहीं, कमल को देख करके आगे बढ़ना होता है। तो आसपास सिचुएशंस कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन अनुभव उस कीचड़ के कमल में ही उगेगा। तो वो अनुभव लेने के लिए हमें उस सिचुएशन से पार करना है। इसलिए कीचड़ को देखकर रुके नहीं, लेकिन अनुभव का कमल लेने के लिए कदम आगे बढ़ाते रहे। और लाइफ एक जर्नी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सीन्स आते हैं, लेकिन कोई भी सीन हमेशा के लिए रुकता नहीं है। हम अगर रुक जाए तो हमें लगेगा सीन भी रुका हुआ है, ये सीन जाता क्यों नहीं, लेकिन सीन कभी जा नहीं रहा था, चल तो हम रहे थे।
हम अभी भी चलते रहें तो सीन क्रॉस कर लेंगे। हमें लगता है कि ये सिचुएशन जा क्यों नहीं रही है, ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है, क्योंकि हम रुके हुए हैं। इसलिए लाइफ का उसूल है, जितना जल्दी चैलेंज को पार करना चाहते हैं उतना स्पीड से लाइफ में आगे बढ़ते रहे। जो भी साइड सीन्स आए उन साइड सीन्स को एंजॉय करते रहे, लेकिन रुकना कहीं भी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। जहां रुकेंगे उसी सीन से हम बंधन में आ जाएंगे, वहीं फंस जाएंगे। और लाइफ एक गेम की तरह भी है, और इस गेम में हम हमेशा बैटिंग पोजीशन पर हैं, और कोई ना कोई सिचुएशन है, कभी कोई, जैसे एक क्रिकेट गेम के अंदर भी जो ऑपोजिट टीम होती है, 11 प्लेयर्स होते हैं, कोई भी प्लेयर कभी भी आकर के बॉल फेंक सकता है, जिसका भी ओवर की टर्न आती है। तो बॉलिंग करने वाला जो सिचुएशन है, जो चैलेंज है, वो चेंज होता रहेगा, लेकिन आई एम ऑलवेज एट द बैटिंग पोजीशन। मेरे साथ जो बैटिंग पोजीशन पे दूसरी तरफ है मेरी फैमिली, वो तभी रनिंग के लिए दौड़ेगी जब मैं दौड़ूं। मैं नहीं दौड़ रही तो वो भी नहीं दौड़ेगी, तो वो भी तभी साथ देगी जब मेरे अंदर हिम्मत है। अगर मैं दौड़ने के लिए तैयार नहीं हूं तो वो भी दौड़ करके रन नहीं बना सकती है। इसलिए ये कहना लाइफ के अंदर कि सिचुएशन ना आए, या मैं सिचुएशन से थक गई हूं, कब तक बैटिंग करती रहूं, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे जल्दी आउट करो, मुझे जीवन नहीं जीना। क्योंकि जब तक जीवन जीना है हमें बैटिंग पोजीशन पे रहना है। इसलिए अपनी पारी लंबी खेलने के लिए हर एक बॉल, जैसे बैट्समैन है, वो वेट करता है कि अगली बॉल आए और उस पे मैं ये शॉट मारूं। उसके पास उसकी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड है, उसको बॉलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसी बॉल क्यों डालता है, उसकी स्ट्रैटेजी अपनी है। तो मुझे आउट नहीं होना, मुझे खेलते रहना है। इसलिए लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन तो बॉलिंग करेगी ही करेगी, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। एंड डोंट वरी अबाउट द टाइप ऑफ बॉल, क्योंकि एम्पायर परमात्मा, डिसीजन उसका है, और उसके डिसीजन से अगर मैं चल रही हूँ, मुझे पता है वो किस चीज को सही किस चीज को गलत बोलता है, और उसके रूल्स पर मैं खेल रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। इसलिए चैलेंजेस से डरना नहीं है। हर चैलेंज के लिए मेरे पास एक बैटिंग शॉट होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो बनाने पे मुझे फोकस देना है। सो इट इज लाइक एन आइसबर्ग। जैसे एक आइसबर्ग होता है, हाउ मच डू वी सी ऑफ एन आइसबर्ग? ओनली 10% इज विजिबल, बाकी 90% जो आइसबर्ग का है वो बिलो द सी लेवल रहता है। इसी तरह से हम जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, वो सॉल्यूशन किस लेवल पर कर रहे हैं, हम चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अगर मेरा जो पुरुषार्थ चल रहा है वो केवल सुपरफिशियल है, स्किल्स और बिहेवियर के लेवल पर है, सो आई एम ओनली वर्किंग ऑन द टिप, मैं अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही। इसलिए सबसे पहले एक चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मुझे अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और मेरा फाउंडेशन है मेरा एटीट्यूड, विच इज इम्पैक्टिंग। जैसे बाबा भी कहते हैं कि अपने मन और चित्त को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमारे पुरुषार्थ का या आगे कदम बढ़ाने का आधार हमारा क्या होना चाहिए? अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल का बदलाव नहीं, थोड़े समय का बदलाव नहीं, लेकिन सदा का। और वो सदा का कैसे आएगा? जब वो डीप रूटेड होगा मेरे अंदर। तो उतना डीप परिवर्तन लाने के लिए पहले मुझे अपने आप को गहराई से समझना होगा। सो नॉलेज ऑफ द सेल्फ इज रिक्वायर्ड, कि अगर मैं इस चैलेंज के आइसबर्ग को पिघलाना चाहती हूँ,
तो कौन से एटीट्यूड पे मुझे वर्क करना है, स्किल्स और बिहेवियर्स विल बी टेकन केयर, कौन से एटीट्यूड पे वर्क करना है, और चैलेंज को भी पहले पूरा समझना है, ये चैलेंज आया कहाँ से, और अपने आप को भी समझना है। अपने आप को समझने का मतलब क्या क्या कहलाता है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी गुण है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के आधार पर हम इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। यह है अपने आप को समझना। तो अपने आप को समझना मतलब अपने गुणों, अपनी शक्तियों को समझना, और ये समझना कि मुझे इस सिचुएशन को पार करने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मुझे आवश्यकता है। हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, हर कदम पे परिवर्तन की आवश्यकता है। हम परफेक्ट हैं, हम कंप्लीट है, दूसरों की मिस्टेक है, उसके कारण से ये प्रॉब्लम आई, ये मेंटालिटी हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं दूसरा व्यक्ति चेंज हो जाए, लेकिन एक्चुअली चेंज किसको होना है, चेंज मुझे होना है। गैप किसको भरना है, गैप मुझे भरना है। तो हम जो है जहां है वो पहचानना है कि वर्तमान समय मेरी क्या हालत है, और मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए मुझे अपने अंदर कौन सी चीज को भरना है, वो भी मुझे रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन गैप को भरना काफी नहीं है, गैप को तब भरेंगे जब अपनी पूरी पहचान हो। जैसे A + B = C, A इज व्हाट वी आर, B इज जो गैप भरना है, एंड C इज जहां मुझे पहुंचना है। अगर मैं भूल गई कि A क्या है, अपने आप को भूल गई, इस समय मेरे अंदर कौन से गुण शक्तियां हैं मैं भूल गई, और जो गैप मुझे भरना था वो पूरा का पूरा भी मुझे मिल जाए तो भी मैं C बन सकती हूँ। इफ आई रिमूव A फ्रॉम द इक्वेशन, B पूरा का पूरा आ जाए, तो क्या मैं C बन सकती हूँ? नहीं बन सकती ना। A तो चाहिए ही चाहिए। तो अपनी जो गुडनेस है वो है A, उसको मेंटेन करके रखना है। सिचुएशंस के आने पर उसको छोड़ना नहीं है। कई बार हमको लगता है सिचुएशन आई ही मेरी गुडनेस के कारण से है, मैं अच्छी हूं ना इसीलिए मेरे को सब एक्सप्लॉइट करते हैं। हम अपनी गुडनेस को, अपने ए को छोड़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं चैलेंजेस में, दूसरों के तौर तरीके अपनाने के लिए बहुत जल्दी हम तैयार हो जाते हैं। अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो बी आने के बावजूद भी मैं सी नहीं बन पाऊंगी, जो आज लोगों का हाल हो रहा है। जो लाइफ में चाहिए सब मिलता जा रहा है, फिर भी खुश नहीं है। सी इज परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट पीस। जो कंडीशन रखते हैं शांति के लिए, खुशी के लिए, सब मिलने के बावजूद भी शांति और खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने ए के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी गुडनेस को छोड़ते जा रहे हैं। तो चैलेंज कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। एंड द ओनली पर्सन दैट कैन सेव यू इज यू। इसलिए अपना साथ कभी नहीं छोड़ना है। जो बाबा हमें निश्चय की बात बताते हैं ना, 4 प्रकार का निश्चय कोई भी परिस्थिति के लिए, वो हम इसमें, उसमें से जो पहला निश्चय है स्वयं पर निश्चय, उसको हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन स्वयं का मतलब क्या है, तो वी कैन टेल देम अबाउट द सोल इसके द्वारा, कि हम किन चीजों पे आज आधार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिन जिन पे हमने आधार लिया वो सारी हमारी आउटर पर्सनालिटी है, वो सब परिवर्तन होने वाली है। वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन जो 90% ऑफ द आइसबर्ग है, जो फाउंडेशन है आइसबर्ग का, मेरी आइडेंटिटी का, वो है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं असलियत में कौन हूं। और अगर हम आउटर पर्सनालिटी के कॉन्शियसनेस में हैं तो लाइफ में चैलेंजेस आना बंद नहीं होंगे, क्योंकि आउटर पर्सनालिटी की सारी चीजें जो हैं वो टेम्पररी है। तो जब भी कोई टेम्पररी चीज का आधार हम लेते हैं तो अपने आप हम चैलेंज को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि टेम्पररी चीज बहुत जल्दी बदलने वाली है, और उसका बदलना ही मेरे लिए चैलेंज है। मेरी कोई अचीवमेंट्स है, अब मुझसे ज्यादा कोई अचीव कर रहा है, तो चैलेंज है नहीं,
लेकिन ये सिचुएशन को मैं चैलेंज की तरह ले लेती हूँ कि ये मुझसे आगे ना जाए, मैं ही हमेशा आगे रहूं, मेरा स्टेटस कम ना हो जाए। तो इसलिए अगर हम अपने आप को जो परमानेंट चीज है उससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो चीज कोई और बदल नहीं सकता। इसलिए माई लाइफ इज सेफ एंड सिक्योर कि जो मेरा है वो मेरा रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। जो मेरी प्राप्तियां हैं, मेरे गुण हैं, मेरी शक्तियां हैं, वो मेरी रहेंगी। तो आधे चैलेंजेस, 50% चैलेंजेस तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो 50% चैलेंजेस चैलेंजेस थे ही नहीं, दे वर ओनली फियर्स, दे वर ओनली इनसिक्योरिटीज ऑफ लूजिंग विच इज नॉट माइन, वो पहले ही मेरा नहीं है। और जब मैं अपनी यूनिकनेस को रियलाइज करती हूँ, आई एम एबल टू बी फ्री फ्रॉम एनी कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों आता है? क्योंकि एक चैलेंज का कारण ये भी है कि हम अपने आप को बाकियों से अच्छा प्रूव करना चाहते हैं, और उस जर्नी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमें सबके अंदर अच्छाइयां दिखाई देती है, और हम सोचते हैं कि वो अच्छाई मेरे अंदर भी आ जाए तो शायद मुझे भी वही अप्रिसिएशन मिलेगा जो उसको मिल रहा है, और वो यूनिकनेस मेरे अंदर आ नहीं सकती। सो नाउ दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर मी कि मैं कैसे अपने अंदर उस गुण को भरूं जो दूसरे के अंदर है। तो इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि अगर एक सोसाइटी के अंदर एक ग्रोसरी की शॉप है, एक शूज की शॉप है, एक कपड़ों की दुकान है, एक डेयरी की दुकान है, एक मेडिसिन की दुकान है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। जिसको कपड़े लेने हैं वो कपड़ों की दुकान पे ही जाएगा, जिसको शूज लेने हैं वो शूज की दुकान पे ही जाएगा। एक सब्जी का ठेला है, वहां पे रोज भीड़ लगी रहेगी। एक ज्वेलरी शॉप है, वहां भीड़ होगी ही नहीं, वहां इक्का दुक्का लोग ही आएंगे। लेकिन ठेले वाला ठेले पे रहेगा, भले उसके पास लाइन लगी है, लेकिन फिर भी वो क्या बेच रहा है, वो चीज लेस वर्थ की है। जो ज्वेलरी बेच रहा है, वहां भले एक ही कस्टमर आए पूरे दिन में, लेकिन वो एक कस्टमर जो है वो ठेले वाले के 100 के बराबर है। सो हमें जब ये दिखाई देता है कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है, वो कंपैरिजन हमारे लिए चैलेंज का रूप ले लेता है। अब मान लीजिए कि ज्वेलरी वाला कहता है कि मेरे पास इतनी भीड़ क्यों नहीं आती, मुझे भी अपनी दुकान में सब्जी ही बेचनी चाहिए, क्योंकि लोग सब्जी खरीदने ज्यादा आते हैं, डायमंड्स लेने कम आते हैं, और वो अपनी डायमंड्स की यूनिकनेस को छोड़ दे और वो भी सब्जियां रखना शुरू कर दे। तो पहले पहले सब्जी लेने वाला एक ही जगह जा रहा था, अब उनके लिए कंपटीशन खड़ा हो गया। तो जब मैं अपनी यूनिकनेस को छोड़कर दूसरे की यूनिकनेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करती हूँ, आई क्रिएट कंपटीशन। मेरे पास अगर किसी का डुप्लीकेट माल है, मैं किसी का डुप्लीकेट बनना चाह रही हूँ, तो मैंने कंपटीशन इनवाइट कर लिया, और मैं ओरिजिनल से बेटर नहीं बन सकती, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रहेगा। मैं जिस चीज में ओरिजिनल थी, अगर मैं उसी चीज को कायम रखती, उसी को और पॉलिश करती, उसी चीज को औरों के लिए और इजीली अवेलेबल करा देती, तो कंपटीशन कभी क्रिएट नहीं होता। क्योंकि मेरे पास जो यूनिकनेस है उसको देने वाली मैं इकलौती हूँ पूरे संसार में। सो डू नॉट फॉरगेट योर यूनिकनेस, डू नॉट गो बिहाइंड अदर पीपल। मॉब मेंटालिटी का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि उससे हम कंपटीशन खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। सो वैल्यू योर यूनिकनेस। दूसरों की क्वालिटीज को अपने अंदर धारण जरूर कीजिए, बट नॉट बाय गिविंग अवे योर यूनिकनेस, अदरवाइज यू आर लूजिंग व्हाट यू आर बेस्ट एट। एंड चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो रिसोर्सेज मेरे पास है, उनको ठीक प्रकार से यूज करने की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ दिखाया है, इसके पास इतनी सारी सीढ़ियां हैं, लेकिन इसको सीढ़ी को यूज करना ही नहीं आता, तो ये बाउंड्री को पार ही नहीं कर पा रहा। अगर ये
अवेलेबल रिसोर्सेज को ठीक से यूज करता तो बाउंड्री कब का पार कर चुका होता. So it doesn't matter how many resources you have, if you do not know how to use them, they will never be enough. मेरे अंदर जब मैं अपने अंदर झांक के देखती हूँ who am I find I have so many resources. उन सारे रिसोर्सेस को अंदर होते हुए भी हम यूज ना कर पाए तो उन रिसोर्सेस का कोई फायदा नहीं. चैलेंज ही बना रहेगा एंड आई विल नेवर फील दैट आई एम इनफ. तो अगर मुझे अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है, आई मस्ट नो हाउ टू यूज माय रिसोर्सेस. और अपने आप को वो ट्रेनिंग देना ही मेडिटेशन है. तो स्ट्रॉन्ग इमर्ज करने के लिए अपने आप को हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड प्लान अहेड. आइडेंटिफाई द रियल फियर. ये सारा अभी हम समराइज कर रहे हैं जो भी हमने देखा उनमें से मेन चीजों को. सो ऑर्गेनाइज एंड प्लान अहेड. त्रिकालदर्शी होना है. जो रियल फियर था उसका रूट कॉज समझना है कि मेरे स्ट्रेस का, मेरी प्रॉब्लम का रियल कॉज क्या है और उस कॉज पे वर्क करना है, सिम्टम्स पे नहीं. सिम्टम्स पे दूर करने पे लगेंगे तो वी वर्किंग ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग. लेकिन अगर हम जड़ को देखेंगे, जड़ को ठीक करेंगे तो हम सिम्टम्स को भी हटा सकते हैं और जड़ को भी हम अपरूट कर सकते हैं. एंड चेक, एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे हिसाब से चले और वो नहीं चल रहा, ये चैलेंज है, तो ये चैलेंज कभी नहीं जाएगा. बिकॉज दूसरा व्यक्ति को मैं अपने रास्ते पर तब तक नहीं चला सकती जब तक मैं एक राइट एग्जाम्पल सेट ना करूं. सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स. If at all you have to do something with them, inspire them, and that has to happen through your own actions. Give, forgive and forget. कई बार चैलेंज आगे से हट भी चुका है लेकिन मैंने फॉरगेट नहीं किया, मैं अभी भी उन मेमोरीज में हूँ. उसने ऐसा कहा, ऐसा हुआ मेरे साथ, ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई, इसका कोई, तो मैं अभी भी उन्हीं मेमोरीज में जी रही हूँ. आई हैव नॉट फॉरगॉटन देम. तो क्योंकि मैंने भूला नहीं है, मेरे सामने एक नई सिचुएशन, एक न्यू अपॉर्चुनिटी खड़ी है, बट आई फेल टू रिकॉग्नाइज. मैं उसको एक्नॉलेज ही नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अभी भी उसी डर में जी रही हूँ, अभी भी पुरानी बातों में ही जी रही हूँ. एंड ऑल इज फॉर द गेस्ट. कीप प्लेइंग द गेम. गेम में कभी भी बाजी आपकी तरफ आ सकती है. एक दो हार से गेम खेलना मत छोड़िए. जैसे चेस का गेम होता है, चेस में जीतने के लिए हमेशा आगे ही बढ़ना जरूरी नहीं है. कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है, कभी कभी ढाई भी चलना पड़ता है, कभी टेढ़ा भी चलना पड़ता है. मतलब अपने मार्ग से कुछ समय के लिए हटना भी पड़ता है, पीछे भी आना पड़ता है, दूसरे को आगे करना पड़ता है. अल्टीमेटली मिला जुला करके हमें एंड में गेम जीतना है. सो अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. लेकिन अगर कभी आगे बढ़ते बढ़ते कदम पीछे लेने पड़े, समझ में आ गया कि ये जो मैं चल रही थी रास्ता, ये गलत रास्ता चल रही थी, वहां से पीछे हटना भी पड़े, तो भी इफ इट इज फॉर समथिंग गुड, अगर उसका पर्पस अच्छा है, तो भी वो मुझे विजय दिलाएगा. और अपने आप को अपनी यूनिकनेस के आधार पर दूसरे के गुडनेस को सीखने के लिए मोटिवेट जरूर करें, बट नेवर कंपेयर. अपनी यूनिकनेस को कभी छोड़े नहीं तो आप अपने आप कंपटीशन इनवाइट कर रहे हैं. एंड बैन नाइट टाइम वरिंग. हम किन संकल्पों से सोते हैं वो मेरे अगले दिन का आधार बन जाता है, तो ये भी उनको बता सकते हैं उस समय पर. एंड बी पेशेंट विद योरसेल्फ. कोई भी सिचुएशन आई है, उस वो जो सिखाने आई है वो धीरे धीरे अपने समय अनुसार सिखाएगी. हमारे अंदर भी समय अनुसार ही. ऐसा नहीं है कि आज मैंने रियलाइज किया और कल मैं बदल गई. हमारे भी धीरे धीरे अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ती है. कोई भी संस्कार पड़ता है, धीरे धीरे पड़ता है. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई नए संस्कार को अपने अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे होगा. सो बी पेशेंट विद योरसेल्फ. एंड पहले भी बताया है these two models, so we can, if we have not shared with them, इसमें से कोई भी बात ऐसी अगर है जो हम पहले उसी ग्रुप में बता चुके हैं, so we can avoid it. Otherwise हम उसको बता सकते हैं. So first inward and then forward.
पहले हमें सिचुएशन से डील करने के लिए, चैलेंज को ओवरकम करने के लिए पहले अंदर जाना है, टू सी हु एम आई, और फिर उस राइट सोल्यूशन के साथ में हमें बाहर आना है। पहले इंट्रोवर्ट, पहले अंतर्मुखी, फिर बाह्यमुखी। एंड जब हम अंदर जाएंगे तो हम अंदर जाके क्या करते हैं? सो देयर इज अ वॉइस इनसाइड दैट डजंट यूज वर्ड्स। उसके लिए साइलेंस की भाषा है, साइलेंस का एटमोस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। तो अंतर्मुखी बन के अपने अंदर, अपने ऊपर एकाग्र होना पड़ता है। उस शांति में, उस एकाग्रता में हमारे अंदर से आंसर आता है। और हमेशा अपना दिन एक पॉजिटिव थॉट और एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ एंड कीजिए, ताकि मेरा अगला दिन भी उसी पॉजिटिव थॉट और ग्रेटफुल हार्ट के साथ शुरू हो, so that new day will be a new opportunity for me। और अपना पाथ आगे डिजाइन करना है। कोई भी चैलेंजेस आए हैं, रुकना नहीं है, उस चैलेंजेस के थ्रू अपना मार्ग हमें डिजाइन करते जाना है। So always believe what you seek is seeking you। आप जो चीज ढूंढ रहे हैं, ड्रामा अनुसार वो भी आपका इंतजार कर रही है। इसलिए कभी भी थक के रुके नहीं, और अगर रुकते हैं तो रुकने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि ऑलरेडी कितना आगे बढ़ के आप आ चुके हैं। हो सकता है कुछ कदम की दूरी पर ही हमारी मंजिल हो। इसलिए एवरी स्टेप काउंट्स। इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, अब नहीं छोड़ने से फायदा है। थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। एंड क्योंकि हम अगर यूनिवर्सिटी से बताते हैं, सो some scientific things will always be appreciated। So यहाँ पे दिखाया है 1 till 2 decimal points of 0 raised to 365 will always remain 1। 1 to the power of 365 will always remain 1। लेकिन आप 1 के साथ 0.01 एक्स्ट्रा लगा देते हैं, that raised to 365 becomes a lot more than 1। इसका मतलब है हर रोज ज्यादा नहीं, 0.01 एफर्ट ज्यादा लगा दीजिए। अगर यही 0.01 एफर्ट हर रोज लगाएंगे तो भी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। इसलिए आज का मेरा दिन कल के दिन से थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा, that little bit cumulatively will create a big difference। इसलिए एक ही दिन में कोई बड़ा पहाड़ तोड़ना, चांद तारे तोड़ के ले आने की जरूरत नहीं है। जस्ट एड 1 एक्स्ट्रा स्टेप टू योर प्रीवियस डे ऑफ एफर्ट। हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे करते करते बहुत थोड़े समय में हम बहुत आगे निकल सकते हैं। सो वो लिटिल एफर्ट कोई भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मुझे रोज ऐड करना है। एंड लाइफ इज एन इको ऑफ योर थॉट्स। अगर आपको अच्छा म्यूजिक सुनना है तो लाइफ वही सुनाती है जो आपने कभी अपने अंदर मन में क्रिएट किया, वही आपकी लाइफ बनती है। तो अगर आप लाइफ से अच्छा सुनना चाहते हैं तो पहले आपको अपने मन के अंदर अच्छे थॉट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। सो कोई भी लाइफ में चैलेंज चल रहा है, उसका परिणाम अगर अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए मुझे अपने अंदर, अपने थॉट्स में वो परिणाम पहले क्रिएट करना है। वो परिणाम मेरे थॉट्स में वाइब्रेट होगा, बिकॉज आवर लाइफ इज डिजाइन्ड बाय आवर थॉट्स। उस चैलेंज को पार करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, पहले मेरे मन में वो डिजाइनिंग चलती है। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वक्त पे क्रिएट नहीं होती, कंस्ट्रक्शन बाद में हो रहा है फिजिकली। बिल्डिंग पहले ही पेपर पे एज अ प्लान क्रिएट हो चुकी है, उसके भी पहले किसी के मन में एज अ प्लान क्रिएट हो चुकी है। सो कंस्ट्रक्शन उसी चीज का होता है जो पहले से क्रिएट हो चुकी है मन के अंदर, और जो मन में क्रिएट नहीं हुआ उसको आप प्रैक्टिकली कभी भी कर नहीं सकते। तो आपको जो भी एक्शन प्लान लेना है, पहले हमें अपने मन में उसको अपने लिए कन्विंस करना है कि दिस एक्शन प्लान विल वर्क फॉर मी। अपने थॉट्स को हमें वैसा क्रिएट करना है। ऑल्सो लाइफ में एवरी नेक्स्ट लेवल demands a new you। Always be ready
for a new learning, for a change. अब तक जैसा चलता आया वैसे ही आगे चलता रहेगा। तो अभी तक का चैलेंज तो मैंने क्रॉस किया, लेकिन आगे का चैलेंज के लिए एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए। इसलिए I have to be always prepared to learn new things. And जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई बार too much of achievement also brings lethargy। बहुत कर लिया, ये आगे करेंगे, ये आगे करेंगे, बहुत हो गया, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। या कई बार कोई बहुत डिफिकल्ट चीज आ जाती है तो उसको पोस्टपोन करते हैं, बहुत बड़ा काम करना है, अभी शुरुआत नहीं करेंगे, कल करेंगे शुरू। So sometimes later becomes never। वो कल पता नहीं कब आए, इसलिए डू इट नाउ। अगर आज लाइफ में कोई चैलेंज आया है, या मान लीजिए हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, फिर भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और अगर अभी कोई चैलेंज आया है तो अभी से ही मुझे उसको पार करने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जिस समय कोई चैलेंज आता है, हो सकता है छोटे रूप में आया है, उसको छोड़ दिया जाए तो वो धीरे 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 रूप बड़ा ले लेगा। जब तक मैंने अपनी शक्ति हासिल की, गैदर की, मैंने चैलेंज का इनिशियल लेवल देख करके शक्ति एकत्र करना शुरू किया, लेकिन जब तक मैंने एकत्र की, टालते टालते, तब तक चैलेंज का लेवल ही बढ़ गया। इसलिए if I have to become stronger than the challenges, I have to start from the early stage of challenge। क्योंकि छोटे चैलेंज के लिए स्ट्रॉन्ग बनना ज्यादा आसान है, जब वो चैलेंज भी समय के साथ बड़ा हो जाएगा फिर मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसलिए डोंट पोस्टपोन। पोस्टपोनिंग करते करते आदत जो है पोस्टपोनमेंट की, वो फिर उस काम को हमेशा के लिए डिफिकल्ट बना देगी। सो डू इट नाउ एंड मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ। न्यू ग्रोथ के लिए पुरानी ग्रोथ को कई बारी अप्रूट करना पड़ता है। गार्डन में बहुत सारे वीड्स कई बार आ जाते हैं, वी हैव टू अप्रूट द वीड्स। तब जिस प्लांट को जरूरत है धूप की, पानी की, उसको वो धूप पानी मिलेगा। इसलिए अगर मुझे अपने आप को वो स्ट्रेंथ देनी है, तो जहां जहां एक्स्ट्रा मेरी स्ट्रेंथ जा रही है, उन चीजों को मुझे खत्म करना है। अगर मेरा टाइम, जैसे पापा कहते हैं घर में झगड़ू में टाइम वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली योग का टाइम कम रह जाएगा हमारे लिए। अगर हम व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ संकल्पों में समय लगाते हैं, तो समर्थ चिंतन में, मनन चिंतन में समय कम बच जाएगा। सो अगर मेरी टाइम एंड एनर्जी नेगेटिव चीजें ले रही है, डेफिनेटली पॉजिटिव चीजों के लिए समय कम बच जाएगा। So I cannot make myself stronger because I'm already losing my time and energy in negative and waste things. So make space. नए पॉजिटिव संकल्पों को आने के लिए, स्ट्रेंथ को अंदर आने के लिए कमजोरी को निकालना पड़ेगा, तभी स्पेस बनेगी। नेक्स्ट, पुरानी बातों को भुलाना पड़ेगा। एंड द बेस्ट वे टू फॉरगेट इज टू बिल्ड न्यू मेमोरीज। पास्ट को ऐसे नहीं भुला सकते, लेकिन न्यू मेमोरीज क्रिएट करना शुरू कीजिए, न्यू एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना शुरू कीजिए। तो जब न्यू एक्सपीरियंसेस आएंगे तो पुराने अपने आप मिट जाएंगे। मान लीजिए कोई सिचुएशन आई है, पहले भी आई थी, पहले आप नहीं कर पाए थे, तो वही नाकामयाबी की मेमोरी अंदर छपी हुई है, और ये नाकामयाबी तब तक मेरे साथ जुड़ी रहेगी जब तक मैं उस सिचुएशन में कामयाब ना हो जाऊं। इसलिए अपने ऊपर से वो नाकामयाबी का टैग ऐसे नहीं उतर सकता जब तक कि मैं कामयाबी का टैग न लगूं। सो टेक इनिशिएटिव्स एंड बिल्ड न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू मेमोरीज। तभी पुरानी वाली जो डर है वो खत्म होगा। और हमेशा याद रखें, हर एक कर्म का इफेक्ट आने वाला है। तो चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कभी भी शॉर्टकट या अनएथिकल मीन्स ना अपनाएं। पढ़ाई नहीं की है, चैलेंज आया कि वही चीज आई एग्जाम में जो हमें नहीं आती, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम अगर अनएथिकल मीन्स
अपनाते हैं तो मे बी आज हम पास कर जाए, लेकिन वो जो कर्म का लूप है वो घूम करके मेरे पास आएगा। आज अगर मैंने ईमानदारी से अपनी गलती एक्सेप्ट की, थोड़ा मुझे एक कदम चेस के गेम में पीछे भी होना पड़ा, हर्जा नहीं है। एटलीस्ट मैं एक चैलेंज खत्म करने के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं क्रिएट कर रही। ये तो कई बार हम छोटी छोटी मिस्टेक्स को करते जाते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, और वो छोटे छोटे चैलेंजेस को ओवरकम करते जाते हैं, लेकिन इन दैट प्रोसेस वी आर क्रिएटिंग अ बिगर चैलेंज फॉर आवरसेल्व्स। और जब वो बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं आई है, तो अब वो बड़ा चैलेंज पार करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं रहेगी। एंड देन इट विल बी टू लेट टू स्टार्ट लर्निंग टू ओवरकम दैट चैलेंज। इसलिए ऑलवेज फॉलो योर प्रिंसिपल्स टू ओवरकम अ सिचुएशन। अपने प्रिंसिपल्स को साइड नहीं रखना, एंड मेक गॉड योर कंपेनियन थ्रू राजयोगा। इसमें आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो अंधेरे से डरता है, तो अंधेरे कमरे में जाएगा नहीं क्योंकि उसको डर लग रहा है अंधेरे से, पर अगर उसका हाथ उसकी मम्मी या पापा या कोई बड़ा पकड़ ले और बोले चलो मेरे साथ चलो कमरे में, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो चला जाता है। उसको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं था, स्वयं पे निश्चय नहीं था, लेकिन जिसके साथ है उस पे निश्चय है कि अंधेरा उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो उनके साथ से वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। अगर मेरे साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा है, తండ్రి ఉంటే భయం ఉండదు కదా, అలా మనతో సర్వశక్తివంతుడైన अगर मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान से बढ़ के तो कोई भी चैलेंज नहीं है। और अगर मैंने सर्वशक्तिवान को साथी बनाया है, तो भले मेरे अंदर शक्ति ना भी हो, लेकिन परमात्मा की शक्ति से मैं उस सिचुएशन को पार कर सकती हूँ। और परमात्मा के साथ वो कंपेनियनशिप का रिलेशन बनाना इज राजयोग मेडिटेशन। तो आप उनको मेडिटेशन का अर्थ बता सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, क्या परिचय है, वो थोड़ा शॉर्ट में दे सकते हैं। And explore Rajयोग meditation to be in the safest hands of at the time of challenges, and use your inner powers to emerge stronger than them, which means the challenges. तो कैसे हम राजयोग मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, परमात्मा को कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि अपनी इनर पावर्स को हम यूज कर सके और challenges को ओवरकम कर सके। So you can end the session with a note, with this note, that meditation is easy method to make God your companion. So with this we can conclude the session. आप इसमें उनको meditation का experience भी कराइएगा, और बीच बीच में कुछ examples, कुछ stories, कुछ activities हम इसमें उनके, जैसे हम हमेशा करते हैं इंटरस्पर्स, जहां भी आपको जरूरत लगे वहां पे आप कुछ कुछ बीच में एक्टिविटीज और एग्जांपल्स भी यूज कर सकते हैं। और एक वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो ऐसे कुछ वीडियोस भी अगर आपके पास हो, यू कम अक्रॉस सम वीडियो, तो वो भी हम वीडियोस को भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बहुत मिल जाते हैं यूट्यूब पर, नेट पर, तो उन वीडियोस को भी हम यूज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शेयर दैट, शो यू दैट वन ऑफ सच वीडियोस।
Thank you. Om Shanti. Wish you all the best. किसी को कोई क्वेश्चन है तो you can ask. These material PPT, yesterday's PPT and today's PPT, we'll share with you. And also activities related also link. Sorry. Activities related link for conducting workshop. हाँ, that link is already there. ठीक है. One more sister, I have already seen the administrative in the link, which the activities on making the audience concentrated and dividing into the group and making to make them introduction. So I think we want activities to make workshop on these topics, which could be yesterday you have said one love formula, no? Like that we need some just not more, maybe a few 2 or 3 also sufficient. Okay. Sure. Thank you, sister. Okay. Thank you. Om Shanti. Have a nice day.